BET تعلیمی ادارے نے نم آنکھوں سے، درد بھرے دل سے، پیار بھرے جذبات سے اپنے فاؤنڈر سیکریٹری الحاج محمد سیف اللہ کو الوداع کہا۔ آپ کے انتقال کے 5 دن بعد BET کالج میں 19 نومبر بروز چہارشنبہ تعزیتی جلسہ منعقد ہوا۔ سابق ریاستی وزیر اور BET بسم اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے چیئرمین آر روشن بیگ کی صدارت میں ہوئے اس تعزیتی جلسے میں علماء کرام، قائدین، عمائدین، دانشور، سماجی کارکن سبھوں نے شرکت کی اور مرحوم محمد سیف اللہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا، مرحوم کے اوصاف خوبیوں کو بیان کیا۔ آر روشن بیگ نے کہا کہ الحاج محمد سیف اللہ کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے ادارے کی ایک نئی عمارت کو محمد سیف اللہ کے نام سے منسوب کرنے کی تجویز پیش کی جائے گی۔ KPCC کے وائس پریزیڈنٹ، روزنامہ پاسبان کے ایڈیٹر محمد عبید اللہ شریف، معروف سماجی و سیاسی شخصیت سید شفیع اللہ، جمعیت علماء ہند کرناٹک کے ریاستی صدر مولانا افتخار احمد قاسمی، بنگلور سٹی جامع مسجد کے خطیب و امام مولانا مقصود عمران رشادی، الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے چیئرمین عمر اسماعیل خان، الامین ڈگری کالج کی شعبہ اردو کی صدر ڈاکٹر سعیدہ بیگم، الامین سے وابستہ اقبال احمد بیگ، کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق چیئرمین مبین منور، معروف کالم نگار اعظم شاہد، یتیم خانہ اہل اسلام کے سیکریٹری نوید احمد خان، بنگلور ساؤتھ ویلفیئر ٹرسٹ کے وائس چیئرمین عمر نثار، مشہور موٹیویشنل اسپیکرز امین مدثر، رفیع اللہ بیگ، روزنامہ سالار کے سابق ایڈیٹر افتخار احمد شریف، BET کے سیکریٹری صدیق پاشا، کیمپس ڈائریکٹر محمد انیس و دیگر نے تعزیتی اجلاس میں محمد سیف اللہ کی خدمات سرگرمیوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے تاثرات، جذبات، احساسات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر محمد سیف اللہ کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر الطاف احمد اور فرزند ارجمند نعمت اللہ سہیل کے تاثرات ہر کسی کو متاثر کرنے والے تھے۔ مولانا محمد اشرف علی نے اس تعزیتی جلسے میں نظامت کے فرائض انجام دیے۔ تمام احباب نے دکھ و درد اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے محمد سیف اللہ کی سادگی، عاجزگی، خوش مزاجی اور ملی اداروں کی ترقی کے لیے ان کے کارناموں، بلند عزائم کی تعریف و ستائش کی۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ صبح اٹھتے ہیں تو بہت سارے مواقع اللہ دیتے ہیں، 3 گروپ میں لوگ بڑھ جاتے ہیں، لیکن ہم ان کو یاد بھی کریں، ان کی مغفرت کے واسطے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ان کے جو بچے ہیں، ان کے اہلیہ ہیں، ان کا جو خاندان ہے، ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے بھی جو ہے نا جو بھی غم وغیرہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ملا کافر میں یہ بھی جو ہے ان کی اختتامی اس کے نصاب میں ماشاءاللہ صافی اترے، اللہ مبارک فرمائے۔ ہم ان کو سلام کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ساتھ میں ایک عجیب بات امام انبیاء کرام علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے، ان اجری الا علی اللہ، ہم اجر لیں گے لیکن اللہ سے لیں گے، پھوٹ نہیں کریں گے۔ پھوٹ نہیں کریں گے، اس کا موٹے ڈکن موضوع بتا رہا ہوں آپ تو بھی یہ جو ہے ماشاءاللہ کہ بھی دس واز اے مزاح۔ تو یہ جو تیسرا گروپ ہے، لیکن a few selected people on earth when they get up in the morning they don't get great opportunities, they get up among challenges, adversities, and جو opportunities سے آخرت بناتے ہیں they are trend followers، جو opportunities سے جو دنیا بناتے ہیں نادان، جو opportunities جانے دیتے ہیں وہ تو جو بیوقوف۔ لیکن جو لوگ جو ہے when they get up in the morning they don't get opportunities, they get challenges, adversities، اس میں جو ہے مواقع بنانا اور اس کو چیلنجز کو جو ہے opportunities میں کنورٹ کرنا، these people are going to be trend setters۔ hat off to انصاف بھائی کہ بھی یہ ماشاءاللہ
he was a trendsetter, not outside alone, so also in family. माशाल्लाह ये ऑगस्ट गैदरिंग मुझे भी महसूस हुआ जैसे जनाब आजम भाई ने कहा कि भी आई नीड टू पिन डाउन व्हाट वी आर व्हाट वाज ही वाज अ फ्रेंड टू एवरीबॉडी. अभी हाल ही में जो है माशाल्लाह हमारे लड़के की का निकाह हुआ तो माशाल्लाह बार बार अम्मा उसका नाम है, सबसे ज्यादा क्लोज मंदिर से थे दोनों. सबका जिस किसी तो मुझे तो सबसे ज्यादा क्लोज मुझे थे. हर फैमिली मेंबर, हर पड़ोस अड़ोस, एनीबडी इन द इदारा कम टू स्कॉल माशाल्लाह जी हॉस्पिटल के आई थिंक साइड सर एंड अमेजिंग मैन ही वाज. ही यूज्ड टू एड्रेस मी आल्सो एज सर. दिस इज बिलीव मी जी. और ऐसा माशाल्लाह जी प्लीडिंग अंदाज के भी ये द वे ही यूज्ड टू एड्रेस माशाल्लाह जी पिघल जाना पत्थर में, आंखों में आंसू आ जाना और उसका जेब खाली हो जाना फॉर ए पॉजिटिव कॉज जी. दिस वाज हिज एटीट्यूड एंड ये माशाल्लाह जी पूरी जिंदगी 50 व्हाटएवर ये जिंदगी जैसे होश में हमने संभाला है. एक पॉइंट माशाल्लाह पूरे हाउस गैदरिंग के सामने मैं कह दूं कि एक जुमला किसी की गीबत हमने नहीं सुना. एक जुमला. He has been kicked out, he has been shot out, he has been manhandled, he has been lot of things have happened all over. We never knew after his death ऐसा भी वाक़ करते ठीक है. ये भी मैं एक्चुअली इसकी तरफ इशारा मौका है बता दूं. अल्लाह ने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान पाक में दिल के लिए. एक जो कल्ब है, दूसरा फुआद है. कल्ब इस जनरल में तफसील का वक्त नहीं है. फुआद कहते हैं कि भी माशाल्लाह जी ऐसे हालात में अल्लाह घेर देता है कि आदमी हक्का पक्का हो जाते हैं, परेशान हो जाता है. इस गुरु को वो रिएक्ट जैसे यूं समझो जो ये मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी अम्मी जान को अल्लाह ने कहा कि मतलब दरिया में डाल दो. वो दरिया भी कैसी सुभान अल्लाह गहरी. वो दरिया कैसी जहां जो है मच्छर मगरमच्छ. वो दरिया कैसी जहां पत्थर. और माँ को कह रहे हैं, माँ पकड़ ले जा रही, दामन बच्चा पकड़ ले जा रहा है. कहां है बाबू. Totally she is devastated. और यहाँ पर जो है डाला उसका वक्त नहीं है. अब उसके बाद ऐसा कल के भी ऐसे हालत में आदमी हालात में दिस आर द एडवर्सिटीज. लेकिन अल्लाह के भरोसे पर डाला. उसकी तफसील है. अल्लाह ने इसको कल में अल्लाह ने कहा हमने बांधा उनके लिए माशाल्लाह कल. आदमी जब एडवर्सिटीज में लेकर उठता है अपने लिए माशाल्लाह जो है हाँ हिम्मत करता है अल्लाह के भरोसे पर, अल्लाह उसके दिल को बांध देते हैं. ये माशाल्लाह फर्स्ट स्टेप हमारा हो कि वी टेक अप एडवर्सिटीज में चैलेंजेस को जो है अपने से बदलेंगे तो माशाल्लाह जो है उसको अल्लाह क्या करेंगे, अल्लाह काम लेंगे और दिल को बांध देंगे. कि भी व्हाट इज टू डू इज इंटरेस्टिंगली ऑल दिस केम टू नो ओनली आफ्टर माशाल्लाह साहब भाई लेफ्ट दिस वर्ल्ड. हमको उनके जाने का खतरे गम नहीं है. अपना उसूल कर ले चलेंगे पूरा. लेकिन व्हाट इज नेसेसरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो मुझे अर्ज करना है, we don't want a duplicate Saifullah here. We don't want duplicate Saifullah in the 20 plus माशाल्लाह इदारों में काम करने वाले. He was not Saifullah as an individual, to institution. We want a better Saifullah. ये मेरे वर्ड्स नहीं है. मेरे एक प्रोफेसर थे समील्ला साहब करके, वो अक्सर कहा करते थे शिफा हॉस्पिटल में, मुझे डुप्लीकेट शमीला नहीं चाहिए, मुझे डुप्लीकेट अल्ताफ नहीं चाहिए. I want a better Saifullah here. I want a better Saifullah, better Altaf here. तो ये जो है माशाल्लाह कि प्यारी मतलब legacy is माशाल्लाह जो है we want माशाल्लाह the better Saifullah in every माशाल्लाह जो है इदारा. अब इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो है ऑलरेडी मौजूद हैं. लेकिन हालात आएंगे. हालत में एक ही काम जो हम घर में बहुत सारी चीजों को देखता है लोग सब यही समझते घरों को यूज्ड टू मेक श्योर किसे पूछे तो भी जाकर हम ना 2 दिन पहले मिले थे, हम ना 3 दिन पहले मिले थे, हम ना 1 दिन पहले मिले थे. एक हफ्ते में माशाल्लाह जो है विद इन दैट 4-5 डेज गांव में वहां गए, सबसे मिले हैं और सबको मिलकर जो है माशाल्लाह माफी चाहा उन्होंने. इंट्यूशन कि भी सबको मिलकर माफी चाहा है. घर में माफी, बच्चों से माफी, हमारे से माफी. एवरीबडी वेयर इज टू गो कि भी जो माफी चाहा है. जिस दिन जाने के दिन माशाल्लाह उन्होंने कहा कि हम अम्मी जान को कहा करते अम्मी, वो कहा करते अम्मा. आज अम्मा मुझे बुला के नमक पर जाओ, सर खत्म.
کہ بھی یہ جو انٹیوشن کہ بھی جو ہے اٹ از سمتھنگ وی کینٹ کمپریہینڈ. بہت سارے بشارتیں ہم نے خوابوں کے ذریعے سے ادروائز سنی ہے, اس کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں, لیکن جیسے ماشاءاللہ ہمارے ساتھی بتا رہے تھے, in the best of the places we don't have غم of his going. It's not a better place. ان کو ملی جنت, ہمیں ملا اجر, لیکن اس بات کا ضرور ہمیں اس بات کا غم ہے, can we join him in his jannat? Can I join him in his jannat? وہ غم مجھے کھائے جا رہا ہے جب سے یہ سن رہے کہ ایک ساتھ جا کر کہنے لگے چھپے حسن سے بھی کر کر. اینڈ ماشاءاللہ جناب جو ہے روشن بھائی صاحب رحمت اللہ علیہ موجود ہیں, رامے میں آئے تھے کہ میرا جی پریشان تھا گھر میں, بیٹھ نہ سکا, گھر وہیں پر آ گیا اور جو ہے ماشاءاللہ کہنے لگے کہ بھی خود بول رہے تھے بھی برانڈ دیکھنا دیکھو آف اسٹیج کا, تو آئے لو وہ برانڈ آف اسٹیج کا دیکھو, جس وقت روٹین کا سب بول رہے ہیں بیلوز, لیکن ماشاءاللہ جو اس کی مہک خوشبو بھی پھیلتی ہے, جیسا بدبو پھیلتی ہے, خوشبو پھیلانے کے لیے پھول کو عطر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. That is what ماشاءاللہ مہک it is going to go on and on. تو اس کے لیے جو ماشاءاللہ ایڈورسٹیز کو جو اپورچونیٹیز میں کنورٹ کر کے اس کو استعمال کر کے ماشاءاللہ فار اے پازیٹیو کاز استعمال کرنا ایک بہت بڑی ان کے اندر اللہ نے ایک ماشاءاللہ قابلیت دی تھی. جب کوئی حال آتا تھا کیا کرتے معلوم ہے, نو ویری ویری ایموشنل تھے ثابت, بہت نرم دل, ایبسلیوٹلی نرمی اتنی کہ بار بار آنکھوں میں آنسو کر گیا. کوئی چیز کہ بھی جو ہے صحیح نہیں ہو رہی ہے, is not able to change, only thing it used is to cry. کوئی مسئلہ بڑا ہوتا تو جو کسی گھر میں اطلاع نہیں دیتے تھے کہ بھی جو ہے جا کر یسوع جو ہے ماشاءاللہ اپنے آپ سو جاتے اور جو ہے خوب روتے تھے اور ان کا پاور نیپ ہوتا تھا. وہ کہاں سے لیتے کہ ہمیں بھی ڈاکٹر ہم نے بھی سمجھ میں نہیں آیا تک he used to sleep for 2 hours out of 24 hours. 2 گھنٹے سوتے تھے پاور نیپ. اس کے بعد بیٹھ کر بہت سارے بولے ہم 1 بجے میسج آتا, ہم 2 بجے میسج آتا, ہم 3 بجے میسج آتا کہ we used to plan the whole next day because ایسا کرے کہ 20 ادارے میں کام میں بھی سب بولتے ہیں ماشاءاللہ اس کیوں ماشاءاللہ برکت کہ اللہ چھوٹی زندگی میں بڑا کام لیا, لیکن جو ماشاءاللہ اس کے پیچھے ایک قربانی ہے. یہاں سے جو ہے بھائی بیٹ سے جس دن ماشاءاللہ نکلے ہیں 4 میٹنگ میں آتے ہیں ماشاءاللہ, اس کے بعد شام شفا میں آئے تھے اینڈ آن 2 hours ہمارے ساتھ دیتے تھے تو ماشاءاللہ امپروو, تو ماشاءاللہ اس میں بھی he came little late. مزاج ایسا کہ 2 hours تو 2 hours حساب کتاب سے. اس دن he left شفا at 7:30 اینڈ ماشاءاللہ جو ہے رات میں it happened what happened اس کی تفصیل دعوت نہیں کہ بہت سارے ہمارے معزز مہمان یہاں پر ہیں, لیکن جو ماشاءاللہ ایک بات پرسنل انداز میں آپ کو کہہ دوں, یہ کسی سے معلوم نہیں, بتا دیتا ہوں میں. ماشاءاللہ صافی واز ناٹ اونلی گریجویٹ, ہی wanted LLB کرنے والے تھے, MSc ملا تھا, لیکن ہماری وجہ سے جو ہے کیونکہ ہم پڑھ رہے تھے میڈیسن, تو اس کی وجہ سے جو ہے ماشاءاللہ we were not able to afford. ہماری فیس MBBS کی وہ ماشاءاللہ مشتاق واٹے میڈیکل سیٹ ان میسور, مجھے ملی داؤگیرے میں میڈیکل سیٹ گورنمنٹ سیٹ. اس وقت فیس میسور میں 400 روپے, میری فیس 6000 روپے پورے سال کی. ہمارے گھر میں وہ 6000 روپے ارینج کرنے کے بعد 3 دن لیے. کتنے دن؟ 3 دن لیے. اور بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ جو گزری ہمارے گھروں پر, لیکن he was a part and parcel being the head, he used to face that tune. تو یہ جو ہے گزرا تو ماشاءاللہ صاحب he is not only he did not do MSc but he is MD medicine written. سن رہے بھائی, MD medicine کر کوئی صاحب ہمارے what happened was کہ بھی جو میں پڑھ رہا تھا, میری اور مشتاق کے روم بازو MS مشتاق جو ہے ماشاءاللہ دیدی منٹو ہاسپٹل میں جوائنٹری میں کیا. جسٹ 2 ہفتے پہلے MD ایگزام کے پہلے میرا ہاتھ پڑ گیا, ایسا لیٹ گیا تو ہاتھ پڑ گیا, ایسا ریڈل پالسی بولتی ہوں. جیسے چاہا کہ بھی آپ قریب ہے ایگزام ماشاءاللہ جو ہے ہاتھ اچھا ہو جائے گا, اور صحیح میرے مینس ٹو ماشاءاللہ جو ہے ریڈ ایگزام کچھ نہیں بنا ٹمارو ایگزام, لیکن ہاتھ کام نہیں کر رہا. وہ یہ I was not able to write A also. Big long story to cut short, inshallah I'll put this in words inshallah later. کہ بھی ماشاءاللہ I got a chance to ماشاءاللہ جو ہے somebody can write your exam. I got a permission from VC, then controller of exam that day, then mashaallah principal. I was going around all the people, and then mashaallah they said he should be a non-MBBS graduate. So mashaallah whom I selected was Safi. Yeah. تو mashaallah پورے پیپرز آڈیٹوریم پر MD میڈیسن کے میں پیپر ڈکٹیٹ کریا, صافی ایگزام لکھے تو میرا پورا ایگزام لکھے, اور اس کے بعد ماشاءاللہ پریکٹیکل آلسو I did with my left hand. الحمدللہ
I was topper in mashallah जो है Bengal Medical College MD exam and that goes mashallah to staffing. मैं क्या के लिखा करेगा आपको नहीं, मैं क्या लिखेगी कर वो एग्जाम पूरा I dictated with words with mashallah spelling. लेकिन इमेजिन के भी हर जगह साफी इसके लिए हम चाहते हैं ऐसे बने तो जो है माशाल्लाह जो है अल्लाह हालात लाएंगे. अल्लाह कहते हैं सारियों कि भाग अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ, उनके लिए जो है सातों आसमान जमीन से ज्यादा बड़ी जन्नत देंगे. लेकिन उसमें अल्लाह ने जो है शर्त लगा दी, इसके लिए होगा इस मुत्तकी लोगों के लिए कौन तंगी में और अच्छाई में ये जो है माशाल्लाह जो है खर्च करेंगे अपना जो अल्लाह ने दिया है, कौन जो माशाल्लाह जो है लोगों को माफ करेंगे काज़िमीन, और कौन अल्लाह ने कहा जो माफ करने के बाद उनके साथ अच्छा बर्ताव भी करेंगे, माफ करने के बाद एहसान नहीं जताएंगे. ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने माशाल्लाह ऐसी जन्नतें रखा है, सातों आसमान और जमीन से ज्यादा माशाल्लाह वसी होंगी. और साथ साथ अल्लाह ने कम नहीं किया, अल्लाह ने आगे दूसरी जगह कहा कि जो इनकी जो है माशाल्लाह इब्तिदा करेंगे, कॉपी करेंगे, अल्लाह ने उनको भी जन्नत का वादा किया है. बहुत सारी बातें बड़ों से सुनेंगे आप, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए. ऑन बिहाफ ऑफ आवर फैमिली, ये जो है माशाल्लाह पूर्ण से हमारे जितने कमेटी मेंबर्स हैं, बीईटी के हैं, कभी भी साथी से कुछ जुबान से हाथ से उनके जो है माशाल्लाह हरकत से अगर आपको तकलीफ हुई है, ऑन बिहाफ ऑफ आवर होल फैमिली आपसे हम ये चाहते हैं कि आपसे माफी चाहते हैं, अल्लाह के वास्ते आप माफ कर दें. और किसी को अगर कुछ वो जो है अगर कुछ खरीद लिया है और जो है नहीं अदा किया है, प्लीज एक्चुअली हमारे पास आए, हम वो भी इंशाल्लाह अदा कर देंगे. ऐसा तो नहीं है, अगर होगा तो इंशाल्लाह उसको भी अदा कर देंगे. और हम जो है ऑन बिहाफ ऑफ होल फैमिली आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक ऑल द बीईटी मेंबर्स इंक्लूडिंग mashallah the people here and plenty of people across. It is a sensation resonating all over the world now. I'm getting mashallah messages from across the world about Safi, an unknown entity for people and known to everybody today. Jazakallah. होते हैं, उनके जाने के बाद भी उनकी यादें महकती रहती हैं. 5 दिन हो गए अजीज सैफुल्लाह हमसे रुखसत हो गए और 5 दिन के बाद उनके ही इदारों में उनके अपने चाहने वाले और शहर के मुख्तलिफ इदारों से लोग यहाँ जमा हैं. ये उनकी हरदिल अजीजी और मकबूलियत का सबूत है. जिस तरह नाज़िम इजलास ने ऐलान किया कि ये पहला जलसा मेरे लिए भी है कि मैं सैफुल्लाह साहब के बगैर यहाँ मैं इस जलसे में हाजिर रहा. यहाँ आने के लिए प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा, जब भी यहाँ के जिम्मेदार ट्रस्टी हजरात, उहदेदार, असातिज़ा जो भी हमें ये मालूम करवाते कि फला प्रोग्राम है उसमें हमें शिरकत करनी है, इसके लिए फॉलो हमेशा सैफुल्लाह साहब कर रहा. वो कई इदारों से वाबस्ता थे और मैं कहना चाहूंगा कि ये जब इदारे की दागवेल पड़ी उस दिन से लेकर आज तक भी इनके हर तकरीब में मैं यहाँ इसका हिस्सा रहा. और आज जिस कदर मंजिलत के साथ ये इदारा कायम हुआ है और इसके चर्चे हर एक की जबान पर हैं और यहाँ का जो डिसिप्लिन है, नज़्म व ज़ब्त है और तालीम का मेयार है, इसमें अकीदत हमेशा शामिल रही है. मैं हमेशा यहाँ स्टेज पर देखता था कि यहाँ जो हमारे लेफ्ट साइड में कुछ कुर्सियां बिछी हुई हैं, वहाँ किसी कोने में पीछे वो बैठा करते थे या बिल्कुल आखिरी सफ में कहीं वो नजर आते थे. इतने अनअज्यूमिंग थे और सब जानते हैं कि उन्हें नाम महमूद का कोई ज़ौक़ नहीं था. वो हमेशा सिर्फ उम्मत में तालीम के फैलाव के लिए हमेशा वो कारबंद रहे. मुझे मेरे जर्नलिस्ट दोस्त ने हाल ही में बताया कि जनाब इरफान रज़ाक साहब जो मुखैर अहबार में उनका शुमार होता है, जब वो हयात थे तो किसी हवाले से बीईटी का जिक्र आया तो जब उन्होंने उनके रूबरू उसका जिक्र किया तो जनाब इरफान रज़ाक ने उन्हें बताया था कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, चालाक आदमी है. वो जानते हैं कि अपने इदारों के लिए किससे किस तरह का अतिया ले और उसका इस्तेमाल किस तरह से वो करें. जिस तरह से एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आवाज में दिखाई गई, उसमें दिखाया गया था
कि जो डोनेशंस मिलते थे वो सिर्फ पैसे की शक्ल में नहीं बल्कि फेथ की शक्ल में, भरोसे की शक्ल में मिलते थे, और भरोसे को जिंदा जागीर बनाया है सैफुल्लाह साहब ने। और मैं ये चाहूंगा कि बहुत से हमारे दूसरे अकाबरीन हैं, वो भी आपसे खिताब करेंगे। मैं मुख्तसरन 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहला ये कि आदमी हमारे दरमियान रहता है, चला जाता है, उसकी यादों को जिंदा ताबिंदा रखने के लिए हमें कोई उसके नाम से मंसूब कोई काम करना चाहिए। जहां हम यहाँ जमा है, ये सेमिनार हॉल हो या सबसे इस इमारत के ऊपर के हिस्से में जो एक प्रोग्रामों के लिए हिस्सा है, उस हॉल का नाम उनसे मंसूब किया जाए तो मैं समझूंगा कि वो एक लिविंग ट्रिब्यूट रहेगा। दूसरा ये कि इस इदारे के जो नर्सरी से लेकर डिग्री तक के तलबा हैं, वो मुख्तलिफ अलग अलग तालीमी इदारों में जाकर इनामात लाते हैं। आपके इदारे में भी कई प्रोग्राम होते हैं, कोई एक्सेलेंस ऑफ एकेडमिक्स के लिए आप सैफुल्लाह के नाम से कोई आप इनाम या प्राइज या अवार्ड आप मंसूब करेंगे, मैं समझता हूं कि ये भी एक लिविंग ट्रिब्यूट होगा। और मैंने देखा है डॉक्यूमेंट्री में कि जहां शेक्सपियर रहा करते थे, जिस जगह वहां पर वो लिखा गया था कि शेक्सपियर यूज्ड टू स्ट्रॉल किया, तो मैं समझता हूं कि सारी इमारत सैफुल्लाह और उनके रूह खान के खिदमात का एक इस्तेआरा है। ये एक यूं कहना चाहिए कि एक निशान इम्तियाज है उनकी यादों को ताबिंदा रखने के लिए। मैं देख रहा हूं कि अखबार में उनके चाहने वाले मज़ामीन लिख रहे हैं, और आज भी एक मज़मून आया हुआ है। वो चाहते थे कि डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब को मुकम्मल खराज अकीदत पेश करें। उन्होंने एक इंटरनेशनल सेमिनार यहाँ करवाया। रियासत के नामवर सपूत प्रोफेसर शेख अली साहब, जो इन इदारों से हमेशा वाबस्ता रहे, उनके खिदमत के इतराफ में भी एक रियासती सतह का उन्होंने, मैं समझता हूं कि वो एक कौमी सेमिनार था। सेमिनार बिल्कुल मेयारी कराने के लिए बीबीटी की हमेशा एक शोहरत रही है। मैं चाहूंगा कि इसके तमाम जिम्मेदार बशमूल इसके एजाजी सदर जनाब रोशन बेग साहब और फरमाएं, उनके खिदमत का इहाता करने के लिए भी एक सेमिनार का इंतजाम हो और उसे भी किताबी सूरत में लाया जाए। मैं न जाने बहुत सोच कर आया था कि मौका मिले तो मैं बहुत सी बातें कहूंगा, मैं समेट के रखता हूँ, ये बातें कभी तहरीर में आपके सुपरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देश के जुलवाफुस तमाम मेहमान, ख़वातीन महज़बात, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं सैफुल्लाह साहब के बारे में कुछ कह सकूं। मुझे वो अल्फाज याद हैं उनके, जब यहाँ रामकृष्ण हेगड़े साहब को हम बुला के फंक्शन किए थे, जाफर शरीफ साहब, मरहूम रामकृष्ण हेगड़े साहब, उस वक्त के गवर्नर खुर्शीद आलम खान साहब, सामने ओपन ग्राउंड था, इसमें यहाँ हमने फंक्शन किया था। तो ये बिल्डिंग उस वक्त नहीं थी, तो इरादा यही था कि एक यहाँ नई बिल्डिंग बनाए, कॉलेज बनाए। तो उस वक्त सैफुल्लाह साहब ने यही कहा था कि साहब इदारे का नाम ही बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं, अल्लाह इसमें बरकत। देखिए कि देखते देखते कैसे कॉलेज बन गई। हमारा उसमें कुछ नहीं है, मैं हूँ, ट्रस्टियान हैं, सबकी मेहनत है, मगर उसमें खासकर सैफुल्लाह साहब की बड़ी मेहनत है। हम उनको बुला नहीं सकते। आज के इस जलसे में हमारे दोस्त जनाब आजम शाहिद साहब ने एक जो राय दी है, सजेशन दिया है कि एक हॉल उनके नाम पे रखा जाए। हम आइंदा मीटिंग में इस पे डिसाइड करेंगे कि एक नई बिल्डिंग जो बनने जा रही है, नई बिल्डिंग उनके नाम से मंसूब किया जाए। तो इंशाअल्लाह आइंदा ट्रस्टियान हजरात से बात करके इस पे फैसला लेंगे। मौलाना ने कहा है कि एक अच्छी मैगजीन में निकाली जाए, वो भी इंशाअल्लाह ज़रूर एक अच्छी, एक उम्दा मैगजीन जिसमें तमाम उनके चाहने वालों के मज़ामीन शामिल होंगे। इन चंद अल्फाज के साथ
मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना वक्त देकर बड़े सब्र के साथ यहाँ बैठे रहे। जनाब सैफुल्लाह साहब की याद में ये ताज़ियती जलसे में आपने तमाम ने शिरकत की। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया कि मैं इस इदारे में सैफुल्लाह साहब के गैर हाजिरी में आया। तकरीबन 35 साल से मेरे उनके ताल्लुकात रहे। जैसा कि मौलाना ने कहा कि अल-अमीन कंबोल पोश में हम उनसे मुलाकात करते थे, लेकिन उन्होंने मुख्तसर कर दिया है, तो मुख्तसर ही रहना है मुझे, वरना ऐसी कई बातें हैं जिसे कई घंटे जो है उनके ताल्लुक से बताया जा सकता है। मैं समझता हूँ ये इदारा बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट, ये जितनी भी यहाँ इमारतें हैं, इसकी एक एक ईंट जो है वो सैफुल्लाह साहब को याद करेगा। यहाँ जितने तलबा हैं, असातिज़ा हैं, मैं काफ़ी देर से देख रहा था कि कुछ तलबा जो है आंख में उनके आंसू आ रहे हैं। ये उस इंसान की उस शख्सियत बयान करती है कि यहाँ के बच्चों से, इस इदारे से उनके क्या ताल्लुकात थे। यकीनन न सिर्फ बीईटी बल्कि यहाँ के असातिज़ा या तालिब इल्म पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। मरहूम सैफुल्लाह साहब समाजी व मिली और तालीमी मैदान में बहुत काम किया है। मैं बिल्कुल उनके सामने अपने आप को बहुत छोटा समझता हूं, क्योंकि उनके जो खिदमत, नवीद साहब हो या हमारे आजम शाह, सब ने यह कहा कि वो पब्लिसिटी के भूखे नहीं थे। आज का माहौल ऐसा है, कोई कुछ करता है तो व्हाट्सएप पे उसकी वाह वाह हो जाती है। मैं जब भी यहां आया वो स्टेज पे नहीं रहे। आपने सही कहा कि वो वहां बैठते थे या कहीं पीछे। उनको काम से मतलब था, शोहरत के भूखे नहीं थे। यकीनन कई इदारों से उनकी वाबस्तगी रही। तकरीबन 3-4 साल से अल-अमीन कंबोल पोश स्कूल जो शिवाजी नगर में है, वहां हमारी ज्यादा मुलाकातें हुआ करती थी। मैं सैफुल्लाह साहब और जे शफीउल्लाह साहब, हमारे रियाज साहब को कहता था कि ये 3 मस्केटर्स हैं, इनकी एक जोड़ी चली गई। बहुत ही संजीदा किस्म के इंसान, बिल्कुल कभी किसी को जोर से बात करते हुए हमने नहीं सुना, या कभी कोई एक किसी को कहा हो कि मैं स्टेज पे आ रहे हैं, आप मेरी तारीफ कीजिए, बिल्कुल नहीं। ऐसी शख्सियतें बहुत कम हुआ करती। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन दे दिलावत। शुक्रिया। जनाब मुबीन मुनव्वर साहब से गुजारिश है 1 मिनट में अपना ख्याल करें। हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मरहूम मोहम्मद सैफुल्लाह साहब के बारे में जितना सबने कहना था कहा है, और आप लोगों ने सुना है। सुनने और कहने से ज़्यादा यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो तमाम उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। लगा सका ना कोई उसके खत का अंदाजा, लगा सका ना कोई उसके खत का अंदाजा। वो आसमां था
मगर सर झुकाया रहता था। बिल्कुल इसी तरह हमारी मीटिंग चल रही थी उस दिन ऑल इंडिया मिली काउंसिल के ऑफिस में। वहाँ खबर मिली कि तबीयत बहुत सैफुल्ला साहब की खराब हुई है। तो मीटिंग में जितने लोग थे सब लोगों ने अपनी परेशानी जाहिर की, बहुत तबीयत बिगड़ी हुई है वगैरह, हमारे सुलेमान खान मोदी का हजरत। और दूसरे ही दिन सुबह ये जाफिशा खबर मिली कि ऐसा हुआ है। सब लोगों ने जो कहा सुना, ये सुनते हुए महसूस हुआ कि बहुत सारे लोग दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, हमें भी एक दिन जाना है। सब लोग, बहुत सारे अक्सर हम में से ऐसे हैं जो जिंदगी काट लेते हैं, उसमें से बहुत सारे जो हैं बहुत कुछ लेके जाते हैं। मुझे लगता है कि जनाब सैफुल्ला साहब यहाँ से बहुत कुछ लेके चले गए, और लेके वही लोग जाते हैं जो दुनिया को, दुनिया वालों को, मखलूक को कुछ देना जानते हैं और दे सकते हैं। ये सब बातें सुनने के बाद लगता है कि हम भी हमारी जिंदगी काट रहे हैं, क्या हमने भी कुछ किसी को देने का कुछ किया है? तो लगता है कि ये इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सैफुल्ला साहब तो जिंदगी में बहुत कुछ लोगों को दिए, जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ कि ऐसे वक्त में जब वो नहीं है, उन्होंने जो कुछ कंट्रीब्यूट किया दुनिया को, उसके बारे में बातचीत हो रही है। दिल चाहता है कि हम भी कुछ ऐसा करें जिससे हमें भी कुछ दुनिया याद करे, और ये सबक हम सब सीख सकते हैं सैफुल्ला साहब के इन नक्शे कदम पर गौर करते हुए। इतना कहते हुए मैं समझता हूँ कि इतना एकदम सादा लोग, बहुत ही शफाफ तबीयत के, और जरा भी शोहरत ना चाहने वाले, और हमेशा काम में लगे रहने वाले, और मखलूक को यानी दुनिया को और मिल्लत को फायदामंद शख्सियत थे जनाब सैफुल्ला साहब। मैं समझता हूँ कि हमें भी चाहिए, हमें से हर एक को उनके नक्शे कदम पर चल के कुछ तो कर लें, अपने लिए ले जाने वाले बन जाए। शुक्रिया। दो तीन बातें जिक्र करूंगा। पहली बात यह है कि हर चीज की एक इब्तिदा है, और जिसकी इब्तिदा है उसकी इंतहा है। जो भी शुरू हुआ है उसको खत्म है, और एक ही जात है जिसका शुरू नहीं है, वो अल्लाह है। और अल्लाह को खत्म भी नहीं है, चूंकि उसका शुरू नहीं है तो उसका खत्म भी नहीं है। अल्लाह के अलावा जितने हैं सबका शुरू है तो सबका खत्म। दूसरी बात यह है, तो खत्म तो सबको होना है, जाना है। दूसरी एक बात, सब लोग जाते हैं, अल्लाह के अलावा हर एक को जाना है। तो बाद लोग जाते हैं तो उनके जाते ही उनका वो खत्म हो जाते हैं, यानी उनका जिस्म, उनकी याद, उनका तज़किरा, ये सारी चीजें उनके जाते ही खत्म हो जाती हैं। बात चीजें हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको फिर भी दुनिया में रखता है। उनका जिस्म चला जाता है, रूह चली जाती है, लेकिन उनके वजूद को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में लंबे लंबे अरसे तक बाकी रखते हैं। जैसे अभी आप समझना चाहें तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ये गए कई सौ साल हो गए, लेकिन आज तक हमारे दिलों में अगर है वो उनका वजूद है, तो ये अल्लाह ताला ने रखा है। इसी को कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया में जिनको वजूद मिला है, आगाज है, वो सब जाते हैं। तो बाद लोगों का जाना होता है, समंदर पर जो झाग आती है या जो कचरा समंदर पर जमा होता है, वो लहर आए तो वो किनारे लगा दिया जाता है, फिर वो सूख जाता है, फिर वो खत्म हो जाता है वजूद, लेकिन समंदर का पानी वो बाकी रहता है और लोगों को नफा पहुंचाता रहता है। एक मिसाल अल्लाह ने कुरान में ये भी दी कि सोना तपाया जाता है तो उसके अंदर का गर्दो गुबार वो हवा में उड़ करके खत्म हो जाता है, जो खालिस सोना रहता है वो बाकी रहता है। दुनिया में वो लोग जो लोगों के लिए जिंदगी गुजारते हैं, वो उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला उनके जाने के बाद भी
लोगों के बीच में जिंदा रखता है। अगर किसी को कामयाबी चाहिए, वो चाहता है कि मैं चला जाऊं फिर भी मैं याद रहूं, याद रखा जाऊं, खानदान में, फैमिली में और समाज में, मुआशरे में, मुल्क में, तारीख में मैं याद रखा जाऊं। अगर कोई ये चाहता है तो उसको अपना पूरा वजूद, अपनी पूरी जिंदगी मिल्लत के लिए, इंसानों की खिदमत के लिए झोंक देनी पड़ती है। जो आदमी अपना पूरा वजूद मिल्लत के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए दे देता है तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ये मकाम देते हैं कि वो याद रखा जाता है। जिनके याद के लिए ताज़ियती इजलास है जनाब मोहम्मद सैफुल्लाह साहब मरहूम, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मिल्लत के लिए, मिल्लत के बच्चों की तालीम के लिए झोंक दी है। कामयाबी जो है, जब तक आदमी को जुनून सवार नहीं होता, आदमी को काम का जुनून सवार नहीं होता, जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता कि ये मेरी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करना, ये मैं जवाब दे के मकाम पर खड़ा कर दिया गया हूं, ये हर एक को मिलती नहीं है। ये मरहूम को मिली हुई थी। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, वो 2 घंटे सोया करते थे, उन्होंने एक जिम्मेदारी ली तो फिक्र सवार हो गई, उसके पीछे पड़ गए जुनून की हद तक, उसको कैसे पूरा करें, रात दिन वही फिक्र सवार। बहुत सारे मसाइल में, मजहबी मसाइल में वो फोनों पर बात भी किया करते थे। ये अजीबो गरीब शख्सियत थी, 2 व्हीलर पर जी सुबह सवेरे बेवकूफों की तरह, देखने वाला समझेगा कि ये कौन है, तो ऐसे ही सहूलिया में मामूली, और इसके अंदर अल्लाह ने इतनी खूबियां रखी थी। और आज मुझे और आप सबको और इतने लोगों को अगर खूबियां यहाँ बयान करने जमा कर दिया है, अल्लाह ने जमा किया है। किसी ने गन नहीं रखी थी कि उनकी खूबियां बयान करो, बैठो उनके लिए, नहीं, ज़बान खल्क़ को नक़्तारे खुदा समझो। लोगों की ज़बान पर जो जारी होता है वो अल्लाह की आवाज होती है जी। ये अल्लाह के यहाँ जो है मकबूल है। जिस दिन जुमे के दिन, जुमेरात के दिन शाम में हालात उनके खराब हुए, मैं बिहार में था, 8 यहाँ के मुअज़्ज़ज़ अमाइदीन थे, हमारे सेक्रेटरी साहब बिस्मिल्लाह मस्जिद के भी, बीईटी की भी जनाब सिद्दीक पाशा साहब, ये भी सफर में साथ थे हमारे। हम लोग वहाँ कुछ मकातिब का काम करते हैं, उसके मुआयने के लिए गए हुए थे। 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले टिकट बन चुका था। तो जब जुमेरात की शाम असर को, मगरिब को मालूम हुआ सूरत हाल जरा पेचीदा है, क्रिटिकल है, तो ये बहुत बेचैन हो गए। सिद्दीक साहब बार बार मुझे जिक्र करते थे, ऐसा हो गया, वो शिफा से चले गए, रामैया में लेके गए हैं, क्या करूं, दुआ करो, ये करो। कहा भाई, मुझे जहन में कभी भी ये नहीं आया कि ये तो कॉमन है, लोग हॉस्पिटल जाते हैं, हार्ट आता है, इलाज होता है, वापस आते हैं, उम्र भी ऐसी नहीं है। मैं तसल्ली देता रहा, नहीं इंशाल्लाह वो ठीक होके आ जाएंगे, बड़ी हॉस्पिटल में गए हैं, दुआ करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो होते होते इंतकाल की खबर आ गई। पूरी रात फोन ही में ये रहे, बेचैन ही रहे, और जुमे के दिन यहाँ आने के लिए वो जितने रास्ते हो सकते हैं वो सब इन्होंने कोशिश कर ली। मैं तो नहीं आ सकता था, मेरे मसरूफियात 2 दिन तक थी वहां, लेकिन इनको भी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन ये गवाह है, ये गवाह है, जिस उसके बाद इंतकाल की खबर मिलने के बाद जिस जलसे में जाना हुआ, जहां खिताब करने का मौका था, सब जगह जहरी दुआ में उनका नाम बाकायदा लेकर उनकी खिदमत का जिक्र करके दुआ की गई। किसी ने हमसे नहीं कहा था, वो एक अंदरूनी आवाज थी उनकी खिदमत की वजह से। तो अगर अब डॉक्टर साहब ने बहुत कीमती बातें बताई, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि उनके जाने का हमें गम नहीं है। बहुत बड़ी बात है, अजीब बात जी। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई। सवाल ये है कि हम सब, क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी कुछ लोग बैठे जो हाथ उठा के दुआ करें? ऐसा हम चाहते हैं, या हम ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं कि लोग कहें कि बड़ा
بدमाश था, जालिम था, चला गया, अच्छा हुआ, बहुत जुल्म करता था। तो हमें अपने बारे में सोचने की जरूरत है। वो तो चले गए और उनका क्या मकाम और मर्तबा है आज की इस मजलिस ने मुतय्यन कर दिया। हर एक की जबान पर उनकी तारीफ, उनकी खिदमत, उनकी तौसीफ, उनके सिफात, आजिजी कूट कूट के भरी हुई थी। बड़े लोगों की आदत होती है, वो बहुत आजिज होते हैं और काम निकालने का फन और हुनर जी वो अजीबो गरीब अल्लाह की देन थी उनको। और मैं एक बात और कहूँगा कि ये इनके हमारे डॉक्टर अल्ताफ साहब या मरहूम मोहम्मद सैफुल्लाह साहब के वालिदैन, क्या वालिदैन थे उनके। ये चारों औलादे भी जो है तारीख रकम कर रहे हैं, तारीख लिख रहे हैं कर्नाटक में, मुल्क में। और सैफुल्लाह साहब की एक तारीख, मरहूम की, ये दोनों भाई डॉक्टर अल्ताफ साहब और मुश्ताक साहब, उनकी एक तारीख है और जमील साहब की एक तारीख है। ठीक, वो माँ बाप भी कैसे रहे होंगे, कैसी तरबियत की होगी। बहरहाल मैं एक तो मरहूम के हक में दुआ दर्जात की बुलंदी की करता हूँ। अल्लाह ताला उनके दर्जात को खूब बुलंद फरमाए, उनकी खिदमत कबूल फरमाए और ज़माने दराज तक उनके नामों को जिंदा रखे। जिंदा रखने की शक्लें जनाब आदम शाही साहब ने जिक्र की है, मुझे उससे इत्तेफाक, मैं इत्तेफाक करता हूँ। और बीटी इदारे को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो है हक भी था उनका इजलास मुनक़िद किया, उनके खिदमात का तज़किरा किए जाने का मौका यहाँ दिया और हमें उम्मीद भी है कि उनकी यादगारें जो मशवरा दिए गए उस पर भी संजीदगी से गौर होगा। उनके जो सिफात जिक्र किए जा रहे, हम सब कोशिश ये की करें हमारे जाने के बाद भी कुछ ऐसी टूटी फूटी चीज़ें लोग जिक्र करें, दुआ करें। मैं पूरे घराने की खिदमत में ताज़ियती कलिमात पेश करता हूँ। कहाँ कहाँ दुआ हुई, कौन कौन किए, आपके जिक्र किए बगैर कहाँ कहाँ हुई, ये सब मरहूम के हक में दर्जात की बुलंदी का जरिया। आपने सही फरमाया, उनके अहले खाना को, उनके अहलिया को, उनके फर्जंद यहाँ मौजूद हैं, उनको, भाइयों को, सबको मेरी तरफ से फकत नहीं, बीटी इदारे की तरफ से, आप सब की तरफ से के पूरे ताज़ियती कलिमात पेश करता हूँ। यकीनन गम है वो फितरी चीज है, लेकिन एक काबिल रश्क जिंदगी गुजार के वो शख्स गया। अल्लाह ताला उनकी यादों को देर जमाने तक याद रखे, खिदमत कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना। शख्सियत, मुहतरम शख्सियत, कुछ दिन पहले यहाँ एक इजलास हुआ। उस इजलास में लहाज और रोशन बेग साहब, तनवीर सेठ साहब और दूसरे बहुत सारे अहबाब यहाँ मौजूद थे। क्योंकि आप कुछ काम जब लेते हैं तो वो इख्तिताम तक पहुँचाते हैं। उन्होंने फरमाया कि अजीज सेठ साहब पर सबों ने किताब लिखने के लिए पहल की है, लेकिन किसी ने नतीजे तक नहीं पहुँचा है। बेग साहब से और दूसरे अहबाब से गुजारिश की कि इस वक्त इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह एजुकेशनल ट्रस्ट अजीज सेठ पर एक उनके कारनामों पर किताब मुरतब करके जल्द अज जल्द यहाँ सबके सामने इजरा किया जाए। लेकिन यकीन मानिए वो हाल ऊपर है, वहां से सीढ़ियों से नीचे उतर के आया। बिल्कुल एहसास भी नहीं है कि उनके लिए भी कुछ परेशानी है हार्ट की। हमारे जय शफीउल्लाह साहब के फर्जंद अर्जुमन खलील साहब ने मुझे फ़ोन करके बताया कि हार्ट की तकलीफ है, हॉस्पिटल में एडमिट है। और उसके बाद फिर फौरन कहा कि बाईपास सर्जरी के लिए ले जाया गया है। फिर उसके बाद कहा कि डॉक्टर अल्ताफ साहब ने शिफा में बुला लिया है तमाम रिश्तेदारों को, तो इस वजह से हम सब शिफा पहुंच रहे हैं, ख़वातीन वहाँ हैं। मैंने उनसे कहा कि रात का कितना भी वक्त हो मुझे इत्तला करे, मैं फ़ोन का मुंतज़िर। आखिरकार खबर दे दिया उन्होंने कि डॉक्टरों ने ये कह दिया
کہ ہمارے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، شفا رب کے ہاتھ میں ہے۔ جتنے بھی بڑے ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، اگر وقت آ جائے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب اعلان کر دیا گیا کہ جی ہاں وفات پا گئے ہیں، اور جمعے کے دن نماز سے فارغ ہو کر جب میں ان کے جنازے پہ پہنچا تو جنازے میں ان کو رکھا گیا ہے، چہرہ یوں مجھ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، مولانا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو گیا ہوں، اب ملٹری کا کام نہیں کروں گا، انسانیت کا کام کروں گا، ملت کا کام کروں گا، تعلیم کا کام کروں گا۔ میری ساری چیزیں ادھوری کی ادھوری رہ گئی، اب میں یہاں جنازے میں سویا ہوا ہوں، بس میں دیکھتا رہا کہ یہ کام کریں وہ کام کریں، لیکن ساری چیزیں اب یہاں جتنا کیا وہ رہ گئی۔ اب میں رخصت ہو رہا ہوں اپنے خالق کی طرف، اپنے مالک کی طرف، اور مجھ سے گویا کہ یوں کہہ رہے تھے کہ تمہارا بھی حال اتنا ہی ہے کہ تم بھی اسی طرح بہت جلد اسی طرح جنازے میں سوئے ہوئے ہوں گے، نہ تجھ سے چل پائیں گے، نہ کچھ بول سکیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہی بات ہمارے لیے ہے کہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ سے ان کو ایک نام دیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی ہے، یوں گھماتے ہی یوں کام ہو جاتا، دکھتا بھی نہیں، محنتوں سے کام کرنا، صبح اٹھا شام اٹھا، جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ٹو ویلر میں کبھی ہسکوٹا چلے گئے، کبھی بنی گپا چلے گئے، کبھی یہاں چلے گئے، کبھی وہاں۔ مجھے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری یہ بیٹی ہے، میرا یہ بیٹا ہے۔ بیٹے اور بیٹے کی فکر نہیں، بیٹی کی فکر نہیں کی، فکر کی تو امت کی ان بیٹیوں کی فکر کی۔ یہی بتا رہے تھے کہ دیکھو اگر ہم کچھ کام کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا آخرت کا ذخیرہ ہے، دنیا میں ہم لڑتے لڑتے مر کر چلے جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا۔ اگر یہاں ہم نے کچھ کام کر لیا تو ہمارے آخرت کا انشاءاللہ ذخیرہ ہوگا۔ میں یہاں ہمارے حضرات علماء بھی ہیں، علماء دین بھی ہیں، ان کے سامنے ایک گواہی دینا چاہوں گا۔ واقعتاً یہ حاجی بننے کے بعد میرے پاس آئے، کہا مولانا میں ملٹری میں تھا، داڑھی نہیں چھوڑا تھا، اب آج آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہوں گا کہ آج سے میں داڑھی چھوڑ لوں گا، اب کبھی شیونگ نہیں کروں گا، داڑھی نہیں اڑاؤں گا، میں یہ داڑھی رکھ کر انشاءاللہ زندگی گزاروں گا۔ اور سب سے بڑی چیز کی گواہی میں یہ دینا چاہوں گا، بڑا امانتدار انسان تھا، کبھی خیانت کرنے والوں میں سے۔ یہی ہم کو بتاتے ہیں کہ دیکھو زندگی میں اگر آپ امانتدار ہو، جب جا کر ہی کامیاب و کامران ہو سکو گے، ورنہ زندگیاں آئیں گی چلے جائیں گی۔ ادھر سے صدیق صاحب کی برابر مجھے فون کرتے رہے، مولانا فجر کی نماز میں دعا کریں، وہ نماز میں دعا کریں، اور ادھر سے شفیع بھائی کی حالت بے حال ہو گئے تھے، اور دوسرے بھائی ماشاءاللہ صبر سے تھے، چونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی اپنی آنکھوں سے، وہ ڈاکٹر صاحب بھی، مجھے ایک زمانے تک پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈاکٹر الطاف ڈاکٹر مشتاق ان کے بھائی ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا ڈاکٹر صاحب۔ بہت بعد میں پتا چلا کہ آپ صاحب بھی پکارتے ہیں، تو واقعتاً وہ صاحب بھائی ہیں اور آپ ان کے سگے بھائی ہیں، کیونکہ ان کے کام کرنے کا انداز بالکل نرالا اور ان کا انداز بالکل الگ، یہ دونوں الگ الگ ٹریک پہ جا رہے ہیں، میں کبھی پہچان بھی نہیں پایا۔ بعد میں ان سے ایک مرتبہ میں نے پوچھ لیا، ایک ہی ماں کے بچے ہو؟
उन्हें कहा हाँ एक ही माँ के बच्चे हैं, मैं बड़ा हूँ, फिर जमील है, फिर उसके बाद मुश्ताक, फिर अल्ताफ, उन्होंने ये कहा था। यही हमारे लिए इस वक्त सबक है कि देखो 4 फ्लोर पे चढ़ के मुझे रुखसत करने के लिए यहाँ नीचे सीढ़ियों से उतर के आके ये कह रहा था कि मैं सेहतमंद हूँ, और अल्लाह बताते हैं कि कब क्या होगा किसी को पता नहीं है। तुम भी अपनी आखिरत की फिक्र करके इसी तरह चले आना कि जैसा जनाजे में वो सैफुल्लाह हंस हंस के हमको मुस्कुरा के कह रहे थे कि तुम भी इस तरह एक दिन जनाजे में सो के 4 कंधों पे सवार होके मन्नो मन मिट्टी में दफन हो जाओगे। बस आखिरत की फिक्र कर लेना। अल्लाह करे कि अल्लाह भी मुझे भी आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। के इब्तदाई दिनों ही से हमारे जनाब जे शफीउल्लाह साहब के साथ मिलकर अल-अमीन के लिए आपने बहुत कुछ किया है। अल-अमीन से भी आपकी खिदमत वाबस्ता हैं। इस दरमियान हमारे दरमियान हज़रत मौलाना डॉक्टर मकसूद इमरान साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ। मैं कह रहा था कि सैफुल्लाह साहब बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे, सबसे बड़े हम्बल और जो है रिस्पेक्टफुल। मैं जो है 15-16 साल तब से जो है घर में वालिद साहब जब भी फ़ोन में किसी से बात कर रहे थे तो शफीउल्लाह और सैफुल्लाह इनका नाम जो है अक्सर आता था, और काम भी उन्हीं से लेते थे। यंगस्टर थे, शफी सैफ ऐसा बोलते थे, काम होते था। अब जो है हमें उनसे बहुत जूनियर हूँ, लेकिन कभी भी जब भी सैफुल्लाह बात करते हैं तो उमर सर और कभी फ़ोन करे तो भी सर देयर इज अ प्रोग्राम इन बीटी फाइनली अटेंड सर, ऐसा बोलते तो मैं फौरन यहाँ हाजिर हो जाता, क्योंकि जो इतनी अदब से पेश आते हैं और इतने अच्छे सोशल वर्कर है तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता। मैं मेरे ऑफिस के चेयर में बैठ के जो बाहर देखता हूँ तो सैफुल्लाह साहब उनकी एक लाइट वॉक, हल्की वॉक, वहाँ से अकेले, कोई साथ नहीं या कोई सिंपल ड्रेस, शर्ट आउट, वेरी सिंपल क्लोथ्स, हल्की चलन, ऐसा चल के दूर से आते हैं और 10 मिनट में काम करके चले आते हैं। कभी भी काम होने के बाद 1 मिनट भी बेकार बैठना, इधर उधर की बात करना अच्छा नहीं, जितनी काम उसी बात करना और चले जाते हैं। और जब हमारी ईसी मीटिंग होती थी तो आते तो उस तरफ बैठते, यानी हमारे चेयरमैन की तरफ अपोजिट साइड जो दूर चेयर है वहाँ पे बैठते और अच्छे मशवरे देते जब भी ज़रूरत पड़ते, नहीं तो खामोश नहीं बोलते। और मीटिंग जैसे ख़त्म होती कब जाते हुए मालूम नहीं होता। और जो भी हमारे अल-अमीन के बाहर के प्रोग्राम है, जो कोलार में प्रोग्राम होता या और जैसे हमारा सकलेशपुर में, हासन में या कहीं और हमारा ट्रिप होती, विजिट होता तो ज़रूर आते हैं, ज़रूर शामिल होते हैं। तो लास्ट इस बार जो है संडे के दिन हमारे मामू सीएम अलीमुल्लाह खान साहब का इंतकाल हुआ, तो सुहेल भी साहब दोनों ऑफिस को मेरे मामू के घर में आए थे। तो मैं बोला सर 2 दिन पहले कोलार में इतना अच्छा उर्दू प्रोग्राम वहाँ पे नहीं आए, तो बोले नहीं कुछ दूसरा काम मसरूफियत थी। मैं बोला कल मंडे के दिन हमारे अल-अमीन में राज्योत्सव प्रोग्राम का सेलिब्रेशन है। इस बार पहली बार ए कैंपस से बी कैंपस प्रोसेशन लेके जाने, और ये प्रोसेशन लेके जाना हम आपसे सीखा है। ये बीटी में जो आप प्रोसेशन निकालते हैं ये आपसे सीखा है, तो आप जरूर आना। तो 8:30 बजे प्रोग्राम था, मैं थोड़ा मामू के घर पे जाके आने थोड़ा लेट हुआ, तो साहब 8:15 बजे आ गए थे और सब ईसी मेंबर्स के साथ जो है फर्स्ट टाइम हम जो है पूरा जो है प्रोसेशन लेके एक कैंपस से वो कैंपस तक गए और पूरा प्रोग्राम पसंद करे, पूरा प्रोग्राम हमें तय करते हैं और फिर वहाँ से गया। तो ये लास्ट मेरी जो है मुलाकात साहब की ऐसी थी। तो बाद में मालूम हुआ कि 3 दिन के बाद उनका इंतकाल भी हो गया। तो सैफ साहब से जो मुझे याद रहेगा, एक सिंपल पर्सनालिटी, हम्बल पर्सनालिटी, जो बच्चों के जो है ये यूनिफॉर्म्स जो उनकी जो ख्वाहिश थी कि बच्चों का टर्न आउट अच्छा हो। ये अल-अमीन रेसिडेंशियल स्कूल में भी हमारे बच्चे जो है अल-अमीन में जो अक्सर जो बच्चे पढ़ते हैं वो लोअर इनकम ग्रुप, लोअर स्टेटस ऑफ सोसाइटी जाते हैं, लेकिन जो उनका यूनिफॉर्म होता है और उनका जो टर्न आउट होता है
किसी भी अच्छे स्कूल के बच्चों से कम नहीं होता। तो आप देखेंगे, आप ये जो बच्चे बैठे हैं या आलमगीर नसीम स्कूल में जो माहौल क्रिएट करे या दूसरे स्कूल में परफेक्ट यूनिफॉर्म, हर बच्चा एक ही टाइप का यूनिफॉर्म और ब्लेजर पहना, ये सब जो है उन्हीं की देन है। और एक बैंड भी जो है, कभी भी स्कूल की बैंड के वास्ते सैफुल्लाह साहब स्ट्रेस करते हैं, जो सी भी स्कूल में गए उनकी स्कूल में एक अच्छी बैंड भी रखते थे। तो ये सैफुल्लाह साहब के ये जो खूबियाँ हैं, एक बच्चों में मेहनत करना और जो है अपना काम किसी भी तरीके से हम्बली, कभी भी विदाउट एनी प्रेशर, रिक्वेस्ट करके हम्बल करके अपना काम हम्बली बहुत से काम उनके निकाल देते हैं। किसी भी कोई भी अच्छे आदमी आए तो ज़रूर से उनसे कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूशन लेना, कुछ कंप्यूटर्स लेना, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। ये इतना बड़ा कैंपस है, कितने लाखों करोड़ रुपए इधर लगे हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके वो डेवलप करें। बहुत जल्दी चले गए सैफुल्लाह साहब, और रहते और 4 साल रहते तो और भी बहुत कुछ काम करते हैं। एक बहुत अच्छा हैंड कौम ने गंवाया है। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे अजीज अली जनाब सैफुल्लाह साहब का एक ताज़ियती जलसे की शक्ल में बहुत ही खूबियों के मालिक जनाब सैफुल्लाह साहब हमारे बीच नहीं रहे। मैं कई दफ़ा उन्होंने मुझे यहाँ पर कोई ना कोई प्रोग्राम में यहाँ पर इनवाइट करते थे, कभी चीफ गेस्ट की शक्ल में, कभी कोई डेलीगेट्स आते तो उस वक्त यहाँ पर मुझे यहाँ पर इनवाइट करते। तो जैसे ही मैं इदारे में एंटर होता, राइट फ्रॉम द एंट्रेंस से ही एंट्रेंस में ही खड़े रहते और हर एक इनवाइटी, हर एक गेस्ट, हर एक जो भी जिसको भी दावत देते, हर एक को रिसीव करते और अंदर बुला लेके जाते। आज मैं यहाँ पर आया तो वो महक जो सैफुल्लाह साहब से यहाँ पर थी वो नहीं रही। सिर्फ महक ही नहीं, पूरी बिल्डिंग के ऊपर भी रौनक नहीं रही। उदासी उदास चारों तरफ, हर एक के चेहरे पे उदासी, एक किस्म का चारों तरफ ऐसा कि भाई हमारा कोई खास आदमी हम लोग गवा लिए है। सैफुल्लाह साहब के बारे में तो मैं क्या कहूँ, नो वर्ड्स। उनके बारे में कुछ बोलना कोई अल्फाज ही नहीं है। मेरा करीब 20 साल से सैफुल्लाह साहब से ताल्लुक़ रहा। ए मैन ऑफ विजन, ए मैन ऑफ मिशन, ए मैन ऑफ कमिटमेंट्स, जो ऐसा इंसान मैं बहुत ही कम देखा हूं। कई इदारों में कई लोग काम करते हैं, सिर्फ ये क्या 2 इंसान जो मेंबर्स जो होते हैं वही काम करते हैं, सारे जिससे सपोर्ट में रहते हैं। वो चीज मैं यहाँ पर हमारे सैफुल्लाह साहब में देखता था। कभी भी वो लाइमलाइट में नहीं आते थे, जैसा कि हमारे आलम साहब कहे, वो हमेशा वो ही इज ऑलवेज ए लास्ट क्या बोलते बैक बेंचर इन ऑल द फंक्शंस। कभी पीछे रहते थे, कभी बाहर रहते थे, कभी कभी वो सामने दिखाई देते थे। कभी डायस उन्होंने शेयर नहीं किया, कभी उन्होंने कोई ओहदा तलब नहीं किया। आज हम लोग सब बहुत ही मिस कर रहे हैं इनको। हमारे यतीम खाने अहले इस्लाम में लास्ट ईयर जो हम लोग इनको कमेटी का सिंडिकेट में लेना चाहते थे, लेकिन वो बदकिस्मती ऐसा रहे कि उन्होंने लाकर एप्लीकेशन नॉमिनेशन फाइल किया जो वक्त उसका जो लास्ट डेट होने के बाद। लेकिन फिर भी मैं इनको क्या किया, कोऑप मेंबर फॉर द एजुकेशन सब कमेटी में मैं इनको अपॉइंट किया था। तो वहां पर इनकी सारी सर्विसेज देते रहे, और जब भी
जो भी मशवरे देना था हम लोग इनसे लेते रहे। बहुत से चीजें इनमें थी जो हम लोग इनके सामने जो भी एक मसला रखते थे तो इमीडिएटली ही यूज्ड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। मैं भी हमारे यतीमखाने अहले इस्लाम में 12 साल से सेक्रेटरी हूँ, और जब भी इनके पास मैं कोई मसला ऐसे डिस्कस करता तो क्या भी फिक्र करो ना, तो साहब मैं मेरे पास बहुत भी हम उसको भेज देता हूँ इमीडिएट। क्या भी ऐसा नहीं कि भाई देखेंगे, बोलेंगे, सोचेंगे, इनके पास वो सब चीज़ नहीं थी। आज हम लोग सब इनके खिदमत जो ज़रूर हम उनको याद करेंगे और उनके लिए दुआ देना है कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला वो जगह नसीब हो। और ये जो हम लोगों के लिए जो अधूरे जो काम आएंगे जो थे, जो छोड़ के गए हैं, हम लोगों को जो है इन चीज़ों को हम आगे लेके जाना है। यही नहीं कि ये इज एन लिविंग एग्जाम्पल दैट देयर शुड बी ऑलवेज सेकेंड लाइन क्रिएट करना बोल के इन लोगों में बहुत इनकी ख्वाहिश थी। तो वैसे ही हर एक इदारे में भी जो है ही वाज लाइक ए किंग मेकर। जो इंसान में काबिलियत है उसको ओहदा दिला देते थे और उसके पीछे जो बैकग्राउंड में सब काम करते थे। तो ऐसे अजीम और शान शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं है कि हम बहुत ही अफसोसनाक है। मैं फिर से इनसे इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि बीईटी के मैनेजमेंट के लोग भी जो है बहुत ही इनको मिस करेंगे। और मैं गुजारिश करता हूँ जैसे कि आज़म साहब ने जो कहा कि इनके नाम से कोई हाल है या कोई स्कूल के नाम से अगर वो चीज़ को यहाँ पर कायम हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए इनका नाम जो है यहाँ पर याद किया जाएगा। बस मैं मेरी 2-4 बातों के साथ भी कुछ मैदान ऐसे हैं जहाँ आपको काम करना है, चुनांचे वहाँ से मुझे तालीमी इदारों से जोड़ा और मुख्तलिफ सेमिनारों में और मुख्तलिफ और दीगर मसाइल में उन्होंने मुझे मसरूफ़ रखा। और उसी दौरान सैफ सर ही ने मुझे मशवरा दिया कि मौलाना आप तो आलिम हैं, फाजिल हैं, सब कुछ हैं, बेहतर होता है कि आप उर्दू में एमए भी कर लेते हैं। चुनांचे मैसूर यूनिवर्सिटी से एमए करने का मौका इन्होंने फराहम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर यूनिवर्सिटी से एमए हुआ। फिर उसके बाद जैसे ही एमए में अच्छा रिजल्ट आया तो उसके बाद सैफ सर ने कहा कि मौलाना पीएचडी करो। बार बार कहते रहे। वो मेरी अपनी नाफरमानी और लापरवाही का नतीजा रहा कि आज तक मैं उस पर अमल नहीं कर सका। इंशाअल्लाह आइंदा इरादा तो है, एक उन्वान भी जहन में है, इंशाअल्लाह मशवरों के साथ बड़ों के इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। तो जिन लोगों को सैफ सर ने तालीमी मैदान में आगे बढ़ाया एमए करने में और फिर डॉक्टरेट कराने में, उनमें से एक हस्ती इस वक्त हमारे दरमियान तशरीफ़ रखती हैं, डॉक्टर सईदा बेगम साहिबा जो अलमीन डिग्री कॉलेज की सदर शोबे उर्दू हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ 1-2 मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार करें। दुनिया फानी में बेशुमार शख्सियतें आती हैं और इस दुनिया से रुखसत भी हो जाती हैं, मगर बाज़ शख्सियतों को दायमी बहा मिलती है और उन शख्सियतों में मोहम्मद सैफुल्लाह साहब हैं। मारूफ इल्मी अदबी शख्सियत के मालिक थे। ऐसी नाबगाए रोजगार हस्तियां बार बार नहीं पैदा होती। इसी वजह से जो है शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक शेर की ताबीर थे, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रफ्त सफर मेरे कारवां के लिए। मेरे कारवां की सिफात आपके अंदर बदरजाए अतम मौजूद थी। आपने हर मैदान में कामयाबी के साथ कदम बढ़ाए और हमें भी साथ चलने का मशवरा दिया था। आप मेरे उस्ताद मोहतरम थे जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और जो है मैं 1994 में बीईटी के हुदूद में दाखिल हुई थी और फिर उन्होंने जो है
مجھے بے شمار چیزوں سے آگاہ کیا. ہم کبھی کبھی سر سے فون کرتے کہ فلاں فلاں مسائل درپیش ہیں تو کہتے کہ اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے میڈم, ہم جو ہے اس کو پورا کر دیں گے. اور شام تک جو ہے شام میں پھر مجھے فون آتا کہ میڈم وہ کام ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ایسی تخلیقی صلاحیتوں سے نوازا تھا. اور اللہ نے آپ سے ایک اور بڑا کام یہ لیا کہ جب ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب نے الامین ریزیڈینشیل اسکول ہوسکوٹے میں تمکور یونیورسٹی کے الحاق سے پی ایچ ڈی کا شعبہ قائم کیا, جو دراصل ساؤتھ انڈیا میں پہلا جو ہے ایک اہم اقدام یہ تھا کہ وہ اسلامک ریسرچ کے لیے جو ہے ایک شعبہ قائم کیا. اس میں سیف سر نے ہر ایک کے لیے میسیجز بھیجے اور اس میسیجز سے میں نے اتفاق کرتے ہوئے میں نے سیف سر سے کہا کہ میں اس میں داخلہ لینا چاہتی ہوں, آپ جو ہے مجھے ایک اپلیکیشن بھیجیں. اس کے بعد میں نے کہا کہ میں نیٹ پاس ہوں تو مجھے دوسرا اپلیکیشن چاہیے, تو بولے کہ ہاں میں بھیج دیتا ہوں. پھر جو ہے اس کو بھی بھیج دیا اور پھر میرا داخلہ ہوا. اور پھر جو ہے چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر میں جو ہے پی ایچ ڈی کی تعلیم مکمل کرنے سے جو ہے کتراتی رہی. تو پھر جو ہے آپ مجھے ہمیشہ سمجھاتے کہ میڈم آپ یہ اونچا کام کر رہی ہیں, آپ کو جو ہے یہ کام کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جب مکمل ہوا تو جو ہے آپ اتنے خوش ہوئے جتنا میرے اہل خانہ خوش ہوئے تھے. میں سیف سر سے جو ہے میرے تعلقات یہاں میں 20 سال جو ہے آپ کے ساتھ کام کیا. آپ ایک باکردار شخصیت کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا وہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مغفرت فرمائے, اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے. آپ کا انتقال ملت اسلامیہ کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے, انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے, ان کے لواحقین کچھ صبر جمیل عطا فرمائے. آسمان تیری لہر پر شبنم افشانی کرے, سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. شکریہ. تمام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام اکابرین بہت اچھی اچھی باتیں سیف اللہ صاحب کے تعلق سے کہیں اور ہم محسوس ہو رہے تھے, دعائیں بھی کی تھی سب نے. تو میں اس وقت کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہوں گا, مولانا نے میرا نام پکار دیا ہے. میں ایک دو تین باتیں کہوں گا کہ ہم ان کے ساتھ بہت کام کیے ہیں. ہوسکوٹے ریزیڈینشیل اسکول یہاں بھی یہاں کی چھت وغیرہ میں نے بنائی سیف اللہ صاحب کے ساتھ مل کر. انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس کینٹین کو اور اس کے ہال کو بھی بنا دیجیے جس میں اکثر فنکشن ہوا کرتے ہیں, جسے میں نے بھی بنائی تھا الحمدللہ. اسی طرح ہوسکوٹے میں بھی انہوں نے کافی کام کیا تھا اور اتنا اچھا فالو کیا کرتے تھے کہ صبح 7:30 بجے جیسے کہ ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب جو فالو کرتے تھے, اسی طرح سے سیف اللہ صاحب بھی جو ہے کسی کام کو لیتے تو پورا کرتے تھے. بہت ہی فوکسڈ آدمی تھے, بہت ہی اچھے عمدہ انداز سے جو ہے کسی بھی کام کو جو ہے انجام دیتے تھے اور سب کی جو ہے عزت کرتے تھے. اپنے چیئرمین روشن بیگ صاحب کی بہت قدر کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کا بھی بہت مقام یہ کرتے تھے. وہ ان ادارے جیسے کہ ہلال اسکول ہے, اس کے وائس چیئرمین صاحب یہاں پر بہت ہی جذباتی انداز سے انہوں نے باتیں رکھی تھی. تو اس طرح سے انہوں نے کام کی. میں کہتے ہوئے کہیے کہ علیزہ دل کو زبان پہ آتا ہے تو اس طرح سے جو ہے میں کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہوں گا, لیکن ہم کو جو ہے جس طرح کا کام انہوں نے کیا ہے, جس طرح سے فوکسڈ ہو کر, یعنی حالات جس طرح کے بھی ہوں لیکن اپنے کام کو جو ہے جاری رکھتے ہوئے اب کام بہت ہی اچھا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے. ہماری مسجد میں بھی کئی بار مسجد معمور میں وہ آئے تھے, کئی چیزوں پر بھی انہوں نے تبادلے خیال کیا تھا. تو ان کی بہت ساری چیزیں تھیں, ان کی جس کام کرنے کا انداز جو ہے بہت ہی نرالا تھا. ایک بار پھر میں دعا کرتے ہیں ہم, اور میں کچھ کہنے کا موقع دیا مولانا نے, میں مشکور ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم. 2011 میں پہلی بار ملا تھا اور میرے ساتھ ایک اسٹاف تھا
और उसने कहा बेंगलोर में पहला जेंटलमैन रहने का, जेंटलमैन नो हम लोग चाहते हैं, बट वो जेंटलनेस, वो जो होता है ना कि रेस्पेक्ट है, सगे भाई को सर पर रख दो, दैट इज समथिंग व्हिच तो हमें लीडरशिप के बारे में किताबें पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल साइमन सिनेक बोलता है लीडर्स ईट लास्ट. I mean, what an example we have in Saifullah Sahab. Leaders, he was the last person to go for PET, first person to come. तो जब मैं खाना खा रहा था, मैं वो सोचा एटलीस्ट उनका एक तो भी काम करेंगे. 2:30 बजे प्रोग्राम है, 2:30 बजे रहना. 2:30 बजे बोल को लेट आने से क्या मतलब, जो लेगेसी उन्होंने देखोगे. ओके, तो मैं आजम साहब की जो व्यूज है वो अग्री करता हूँ. His legacy is very very nice. वो बोलते हैं ना सर्वेंट लीडरशिप, लीडरशिप के लेसन में आता. He was a servant. मैं नाज़िम हम को देखते हैं उस दिन दादू सभा के दिन उन्होंने सीढ़ियां को धोरी. भाई which management person will do that? He was counseling students. तो the lesson he has given to us is पोस्ट रहो तक रहो, हमें हमारी आखिरत बनाने हमारी खिदमत कर लेना. ओके, अल्लाह ताला हमना वो पोस्ट की लत से बचाए. मैं सदर बनना, मैं सेक्रेटरी बनना नहीं, क्या भी नहीं. कभी हमें मर को जो जनाजे में देखिए हमें वो चेहरे पर रौनक थी, लग रहा है कि वो मैयत कर. मैं होंच घर पर देख ले था. अल्लाह ताला मैं वो सोच रहा हूं हमें मरने के बाद कौन तो याद कर दिया होगा. He has kept the benchmark very high. I don't know if I die who will come. नहीं दिया क्या? Because हमें वो contribution इस नहीं करे. सर बोले हमारा क्या contribution? So he was flawless, he was smooth, he was able to go everywhere. तो अल्लाह ताला मर्दों की मग़फ़िरत करे. But unexpected, thank you so much. पहली बार मेरी मुलाकात 2001 में तकरीबन जब मैं ट्रेनिंग का सफ़र शुरू किया अपनी ज़िंदगी का, उनसे मुलाकात हुई तो मेरे साथ में ऐसा पेश आए उन्होंने, मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूँ, हालांकि मैं नहीं था उस टाइम पर. मुझे कई इदारों में उन्होंने मौका दिया कि मैं आकर मेरे खिदमत को अंजाम दूँ. जब ये सारे बातें उनके बारे में सुन रहा था मैं, तो मुझे एक शेर याद आया. वो शेर सुनने के बाद कई दिन पहले मैं शेर सुना था, मगर वो शेर अगर कोई जिंदगी से जोड़ सकूं, सैफुल्लाह साहब की जिंदगी को गौर किया, मुख्तलिफ हजरात ने उनके बारे में बातें रखी, तो ये शेर मुझे बार बार याद रहा. अगर आपकी इजाजत है तो मैं अर्ज कर दूं. मेरी जिंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, इसीलिए मैं मुसलमान, इसीलिए मैं नमाजी. अगर ये किसी शख्स पर मेरी जिंदगी में फिट होता है तो जनाब सैफुल्लाह साहब. उम्मीद करता हूं कि उनकी जिंदगी से हमने जो कुछ भी सीखा है, हम लोग कुछ ऐसा कर गुजरे जिससे कि हमारी दुनिया और आखिरत बन जाए. और मैं अपने आप में फख्र महसूस करता हूं कि उन्होंने जब मुझे यहाँ पर दावत दी 2022 में, यह हाल रिनोवेशन होके पहला प्रोग्राम करने का मौका आया, तो उन्होंने कहा रफ़ी सर, मुझे रफ़ी सर कहते थे, जैसा अपने छोटे भाई को वो सर कहते थे, मुझे रफ़ी सर कहते थे. शर्मिंदा ये महसूस होती है, इतने बड़े शख्सियत. तो उन्होंने कहा ये हाल का पहला प्रोग्राम आप कर रहे हैं. और बातें मुझे याद आई, तो चलिए हम लोग उनकी ज़िंदगी से एक सीख लेकर चलेंगे कि हमारी ज़िंदगी को ऐसे बनाएं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी. अस्सलाम वालेकुम. माज़ूर हाज़रीन किराम, कहा जाता है कि इंसान के जब जज्बात, उसके एहसासात गालिब आ जाते हैं तो वो अपने ख्यालात की सही तर्जुमानी कर नहीं पाता. कुछ ऐसी ही कैफियत इस वक्त मुझ पर तारी है. मैं इस शशोपन में हूँ, उलझन में हूँ कि सैफ साहब से मुताल्लिक़ मैं क्या कहूँ. हमारी रफ़ाक़त तकरीबन 35 बरसों पर मुहित रही. बीएटी का इब्तदाई दौर था, जब कोई जलसा या जुलूस यहाँ होता तो सीधे शफी साहब को लेकर सैफ साहब
रोज़नामा सालाना रखवाते और ये गुजारिश करते कि इस रिपोर्ट को शाया किया जाए और उनका बार बार आना ये बहाना बना हमारी गाढ़ी दोस्ती का। 35 बरस तक हम एक दूसरे के साथ रहे, मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ जलसों में हम साथ रहे। और मैं 1 मिनट में कहना चाहूँगा कि सैफ साहब से बेहतर PRO मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। ताल्लुकात कायम करने में आपका अपना एक रिकॉर्ड था और BET को इन बुलंदियों पर ले जाने में इन्होंने अपनी सलाहियत का पूरा इस्तेमाल किया। न सिर्फ आप BET के लिए खिदमत अंजाम दी आपने, बल्कि दीगर कई इदारों से भी आप रहे, आपसे ताल्लुक रहा, हिलाल स्कूल रहा, मधुगिरी रहा, जामे मस्जिद के आप रुकन रहे, यतीम खाना अहले इस्लाम का, हर जगह उन्होंने अपना सिक्का जमाया एक अच्छे इंसान की हैसियत से। मैं ये बात कहता हूँ कि उन्होंने कभी अपने नाम के लिए कभी काम नहीं किया। और यहाँ के जो तालिब इल्म हैं वो जानते हैं कि जब भी कोई इजलास होता तो उन्होंने कभी स्टेज पर आकर नहीं बैठा हो, हमेशा वो स्क्रीन के वो स्टेज के पीछे रहा करते थे। बहुत कम मैंने उनको स्टेज पर देखा। अल्लाह ताला हम तमाम को इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इनका उठ जाना सिर्फ BET आलमीन के लिए नहीं, तमाम तालिबी इदारों के लिए एक बहुत बड़ा नाकाबिल तलाफी नुकसान है। अल्लाह ताला आपको बरीक़ रहमत करे। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, वरना जो है मैं तो What do I have to say today? My emotions are overpowering my words. Abba has contributed his entire life to the community, not only community, to the society as a whole. Alhamdulillah, if a day had 24 hours, 16 to 18 hours he has spent with the community. Only in the night, at around 10:30 or 11 o'clock, he used to come home, and early morning 7 o'clock he used to leave. Probably Umar sir will second me. सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर कोई देते तो घर वाला ही। इतनी कुर्बानी अगर देंगे तो घर वाला ही देंगे। परसों मेरे वालिद मुकाम जनाब हजार रोशन एग्जाम बता रहे थे, हॉस्पिटल में थे। मैं 15 साल एक मिनिस्टर रहा, आपके वालिद कभी भी मेरे से ये सिंगल पर्सनल फेवर नहीं लिए। मैं इसको रिलेट करते हुए बोलना चाहता हूँ। मेरी माँ एक टीचर थी, हाल ही रिटायर हुई। उनका पहला पोस्टिंग चटपटा में हुआ। She worked there for 8 years. The next transfer was Kanakpura. She worked there for 7 years. चाहते तो अपनी बीवी के लिए ट्रांसफर रिकमेंड करा के ट्रांसफर करवा सकते थे, but he never utilized one single. That amount of sacrifice and एक बहुत सारे खूबियों के मालिक थे अब्बा। एक दो पर्सनालिटी ट्रेट्स उनके जो मैं खासकर ऑब्जर्व करता, ही इज वेरी सेल्फलेस। कभी अपने लिए कुछ भी फेवर नहीं लेते एंड वेरी इम्पार्शियल। Used to love the same way what he used to love me, the same way all the teachers, all the school students, in fact all the companions. As my chacha told you, he has never even complained one single word in the house. ये काके स्कूल हो या कोई कॉलेज हो या किसी के बारे में घर में कभी गलत बात या कोई कंप्लेंट। वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, बोलना चाहूं तो प्रैक्टिसिंग अपराइट मुस्लिम थे, मुखलिस थे, खुलूस था, इसीलिए शायद अल्लाह उनकी सुनता था। प्राउडली दैट इज व्हाट आई बिलीव। अल्लाह ताला जो भी वो खाली जेब बता था, कभी भी जो भी डिसीजन लेते, कोई काम करना हो, फंड्स नहीं रहता था, सिर्फ इरादा करते। अरे माय BET के मैनेजमेंट प्रॉब्ली वुड सेकेंड मी। आप लोग कभी भी कंप्लेंट करते कुछ भी नहीं है, क्या कर रही सैफुल्लाह, ये सब काम कैसा कर रही तुम्हें घर को, लेकिन अल्लाह है बोल के he used to start the work। अल्हम्दुलिल्लाह मुकल भी बजाता था। That was the power of a practicing Muslim, not as an individual,
let us pledge today to be a practicing Muslim. बहुत सारे पर्सनल ट्रेड्स आप आगे सुने, उसको हम इनकलकेट करें अपने आप में इंशाअल्लाह। अगर हम let us pledge, everybody pledge to be a Saifullah here, इंशाअल्लाह ये सारे जो ट्रेड्स हैं उनको हम even I'll promise today. In fact, I asked my all BTS fellow colleagues, promise that we inculcate all those personality traits and become an upright practicing Muslim. तभी जाके revolution आएगा. You are not here to serve only the community, you are here to serve the society, ultimately to the nation, inshallah. Thank you so much for giving me opportunity, and in fact I thank everybody who have come here to participate in the creed. Thank you. Almighty Allah, the most benevolent, the merciful, Rabbi Zidni Ilma, O Almighty Allah, give unto me more knowledge. I will not speak much because for the want of time. Sir was a fatherly figure to me, and I have seen him right from my childhood. Okay, and my association with BET is just, I've completed 4 years. I'm a 4-year-old child in BET institution, and it's a great family. But in 4 years, I have learned a lot. He never used to leave my hand, and even on the last day, he was there in my office, sitting and continuously having meetings for more than 5 hours, and even while leaving, half an hour he was standing and he was speaking to me, and he never had lunch. Neither he had lunch in BET, nor did he have his lunch in Shifa. He told me that he's going to Shifa and his lunch will get wasted. Never he used to waste even a grain of rice. Okay, and here to convey the condolence message of our working chairman sir is not able to come to terms even now. He has conveyed his message, and one more message from Rafi Humayun, UAE Sharjah. He is the son of late Mazhar Meet sir, founder of Mawali Education Society, a great associate of sir. I, Abdul Muhib, working chairman of BET institution, am still unable to come out of this shock. The passing away of Mr. Saifullah is an irreplaceable loss to the institution and to me personally. He was not only a founding pillar, but also a guiding force who shaped every stage of our growth. Together we have served this institution for more than 40 years. Our journey began with 2 small classrooms and a handful of students with dedication, vision, and hard work. We built this great institution step by step. Today, whatever progress we see is a result of his commitment, sincerity, and relentless efforts. I cannot imagine that Mr. Saifullah is no longer amidst us. His absence has created a void that can never truly be filled. He worked tirelessly every single day, always believing that the best must be delivered, whether in academics, administration, or students' welfare. His discipline, perfection, and firm belief in quality have left a deep imprint on all of us. Inshallah, we'll carry forward all his plans and fulfill every dream he had for this institution. I regret that I am unable to attend the condolence meet today. Emotionally, I am still not prepared to accept that he is no longer with us. My health too does not permit me to be present physically, but my thoughts and prayers are with all of you and with the bereaved family. I extend my heartfelt appreciation to all the dignitaries, staff members, well-wishers, and associates who have gathered today to honor his memory. Your presence reflects the immense respect and love he earned through his noble work. My humble request to everyone is to continue supporting the institution just as you did during his leadership. Let us uphold his values, maintain the unity he nurtured, and collectively work to realize the vision. May Almighty Allah grant him the highest place in Jannah, give strength to his family, and bless this institution to continue progress under the legacy he has left behind. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा. I see he always used to eat BET, sleep BET, drink BET, breathe BET, walk BET, and talk BET. Okay, and he was the man of action. Now, coming to the message from UAE Sharjah from Rafi Humayun Bhaiya.
dear brothers and sisters and the managing trustees of BT Institution, I was deeply saddened to learn of the passing of my dearest brother, to whom I always call Saib Bhai, founder secretary of BT Institutions. I would like to extend my sincerest condolences to each and everyone associated with Saib Bhai and his work. Saib Bhai's legacy of love, warmth and kindness speaks in volumes, especially his dedication to the betterment of the community. Through BT Institutions, he likely played a pivotal role in advancing education and empowerment for the downtown community. His efforts in the education would have contributed significantly to bridging the gap and creating opportunities for those in need. His commitment to serving the community, especially in the realm of education, have touched countless lives, fostering growth, understanding, and progress. I hope that the memories of his contributions and the values he instilled continues to inspire and guide the institution in its mission to uplift and support the community. I wish the family, friends, and colleagues of Alhaj Muhammad Saifullah Sahab peace and comfort during this difficult time. Thank you, Jazakallah. रात सोचा कि तेरे एहसास लिखूं, रात सोचा कि तेरे एहसास लिखूं, हो गई सुबह क्या क्या नादान लिखूं, मेरे अल्फाज नहीं काबिल तेरे शान के, मेरे अल्फाज नहीं काबिल तेरे शान के, मैं किस तरह तेरी हस्ती के उन्वान लिखूं. Thank you. With heavy heart, I remain. Jazakallah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज जो उनके जनाब मोहम्मद सैफुल्लाह मरहूम उनके इस ताज़ियात जलसे में माशाल्लाह एक कल ही बैठ कर हम डिसाइड करें, तो इसलिए कि और भी बहुत से अदारे वाले ताज़ियात जलसा करना था, तो इतनी शार्ट पीरियड में लोग आज जो पेपर में भी आया था सालार में और एक इन्विटेशन के ज़रिए से भी जिन जिन लोगों को हमें भेजा माशाल्लाह तमाम लोग यहाँ हाजिर थे. तो माशाल्लाह जैसा कि रोशन बेग साहब हो, हमारे मौलाना मकसूद इरमान और मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत से जो लोग जो है ना और नॉट ओनली फ्रॉम बीईटी और अदर जो भी इदारे से जो मुंसलिक थे वहाँ की भी जिम्मेदार आए. बहुत लोगों ने उनके बारे में जितने बातें हमें खुद नहीं जानते थे वो बातें जो आए हुए मेहमान थे ना उनके ज़रिए से भी जो मालूम हुआ. तो अच्छे खिदमतगार थे, एक डेडिकेटेड वर्कर थे और कौम की भी जो है ना बहुत फिक्र रखते थे, ख़ासकर गरीब बच्चों के लिए. जो बच्चे जो आर्फन हैं उन बच्चों का भी जो है ना बहुत एक सोच थी उनको, तो वो बच्चों की या तालीम ना महरूम ना हो, उनका फ़ीस का मामला हो. और हमारी एक स्कॉलरशिप कमेटी भी है, वो कमेटी के ज़रिए से भी हम ताउन करते थे. नॉट ओनली फॉर दैट, ऐसे बेंगलुरु के अंदर NGO से तकरीबन 100 से ज़्यादा स्कॉलरशिप देने वाले जो अदारे हैं उनसे भी है ना कांटेक्ट कर को जो बच्ची हमारे पास आ गई तो उन्हें किसी भी हालत में पैसों की वजह से ड्रॉप आउट ना हो, ये हमारी कोशिश भी थी. उनकी भी एक मुहिम के जैसा उन्होंने भी चला है माशाल्लाह. तो मैं समझता हूँ जो 100 साल की उम्र तक जो होने वाला काम है वो उन्होंने तकरीबन 60 या 60 साल की उनकी उम्र में तो बहुत से सारे काम उन्होंने अंजाम दे गए. मैं हमारी बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट कमेटी के ज़रिए से मैं उनको दुआ गुआ हूँ और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए. आमीन. उसके हम तकरीबन किसी को भी है ना मैक्सिमम लोग हम फ़ोन नहीं किए. चंद लोगों को हम उनके जो ख़ास थे हमको जो जानकारी रखते थे, जैसा हमारे शफी हैं और हमारे से एजुकेशन ट्रस्ट के तरफ से आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको मैं अहले तहसीन करता हूँ. हमारी दावत पर उनके एक छोटे से एक जलसे के लिए आप यहाँ आए, तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी बात बहुत मोहतरम नाज़रीन, हमारे इस इदारे के चेयरमैन जनाब रोशन बेग साहब की तशरीफ लाए. आज वो तो कल हमारी बारी है. सबको बहरहाल दुनिया से जाना है, अगर दुनिया में जाएंगे, लेकिन आमतौर पर एक जुमला हम आपस में एक दूसरे को दुआ देते हुए कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे. उम्र में बरकत का क्या मतलब है? सारा जिंदगी रखी है तो बरकत की दुआ देने
انہیں آپ نے جو زندگی مقرر کر رکھی ہے اس زندگی میں آپ ان سے اتنا کام شیخ صاحب نے دیکھتے ہیں، دیکھ چکے ہیں اور ان سبھی کا ہم اعتراف کریں۔ پہلا جلسہ ہے اس ادارے میں، پہلا موقع ہے کہ ہم شیخ صاحب کے بغیر جلسہ منعقد کر رہے ہیں۔ جب کبھی اس طرح کے جلسوں کا یا ادارے سے متعلق کوئی پیغام ویڈیو کے ذریعے سے اوروں تک پہنچانے کا یا اس طرح اور بھی کوئی مسئلہ، کوئی مضمون لکھنا ہو یا ادارے سے متعلق چند باتیں کسی سے لکھوانی ہو تو دنیا سے جانے کے بعد انسان تو انسان ضرور میں ہمارے درمیان جناب عبید اللہ شریف صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں اور ان کا کیا مقام مرتبہ تھا، یہ ساری تفصیلات مختصر انداز میں سب سے چھوٹے بھائی ڈاکٹر الطاف صاحب اس وقت ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، 4 کے بعد ڈاکٹر مشتاق اور سب سے آخر میں ڈاکٹر الطاف۔ دنیا بناتا ہے، نادان نہیں ہے بلکہ سمجھدار نہیں، تو یہ نادان ہے، بے وقوف ہے، ناڑے پاپ تمہارا نمبر کر محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے اے اللہ نہ کوئی بیماری نہ کوئی اور چیز بلکہ ہم سے وہ ایسے ہی رخصت ہو گئے ہنستے ہنستے۔ اے اللہ ایسی موت ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے احباب بھی قرآن شریف سورہ یاسین کلمہ آیت الکرسی دعائے قنوت استغفار تسبیح جتنی مرتبہ انہوں نے اللہ ایک بے ہمدرد غنی تیری خیر خواہ، چاہے وہ اساتذہ ہو چاہے طالبات ہو چاہے ٹرسٹیاں، ان کے درجات کو بلند فرمائی۔ اللہ کبھی ان کی زبان میری بھی بڑی قدر کرنے والے، پورے علماء کی قدر کرنے والے۔ اے اللہ ایسا سچا انسان ہم سے رخصت ہو گیا، اس کی بھرپور مغفرت فرما دی، ان کے درجات بلند فرمائی، ان کی بیٹی ہوں، ان کے اہلیہ، ان کے فرزند ارجمن پوتے نواسے سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ سب سے بڑھ کر اے اللہ جو یہاں روشن بے صاحب ہو، دوستوں صدیق صاحب ہو، ریاض صبر جمیل عطا فرما۔ ان کے رخصت ہونے کی وجہ سے سب پریشان ہیں، ڈاکٹر الطاف ہو، ڈاکٹر مشتاق ہو، جمیل بھائی ہو، ہونے کا موقع ہے۔ اے اللہ ایسی موت ہمیں بھی نصیب فرما۔ جتنے احباب یہاں ان کے بارے میں کہے ہیں سب کی کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان تمام کی زبانوں کو اے اللہ مخار خدا سمجھتے ہوئے ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد